Very good morning, class. So, we will discuss a very important one. Okay, this is very much important one in terms of medicine, medical implementation of immunology. Yeah, medical immunology. Okay, when you get the chance to going to some doctors who are carrying medical surgeon who are in research in medicines. Okay, this is one of the best topic. This is one of the best one we have to understand. These molecules, yeah, major histocompatibility complex plays very important role in recognition of medicines. Okay, so this is a how much we are discussing over here, that much only doctors are used to read. या ठीक, सो हमको इसको अच्छे से समझना है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली नाउ, मिड सेम 1, मिड सेम 2, फाइनल, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, म्यूट, any competitive exam you can find questions, not only here. After that, when we are discussing about unit 3, then you can imagine something about this. Okay, who were present online, if they have any kind of questions, they can unmute yourself and then ask me, not chat. Okay, because I am not frequently I am unable to frequently check my chat box, so you please unmute yourself and ask me. And the second important announcement is, we will stop our lecture here 8:45 sharp, and after 45 minutes sharp 9:30 I will start my lecture. Okay, who were present, did you get me? समझ में आया? जो भी ऑनलाइन में है, मैं 9:30 यहाँ पे या 8:45 को अभी बंद करूँगा और शार्प 9:30 को फिर शुरू करूँगा. क्लियर? 9:30 को फिर हमको ज्वाइन करना है. ओके ओके, सो ना मैं आज लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, कोई बता सकता है? लैब का टाइम पे देर आर 2 रीजन्स, बिकॉज द offline people are busy with Ganesh Puja, and second one is sample deficiency for the what you call experiment. Anyway, the thing is that हाँ रीजन वही है, मैं कर सकता था. आपको क्या पता कौन सा में लेके आगे पता चलता, इसलिए मैं ऑनेस्ट हूँ. मेरे लिए खुद के लिए ऑनेस्ट बनो, दूसरे के लिए छोड़ दो. सैंपल तो यहाँ बना लेता है. हाँ, निकालते सैंपल यूज कर देते. अरे पॉजिटिव सैंपल चाहिए. हाँ, कहाँ से मिलेगा? वो तो पैथोलॉजी का से मिलेगा ना. एनीवे, हाँ राइट. सो होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? These are cell surface proteins. ओके, ये क्या होते हैं? सेल जो है ना, सेल का सरफेस में प्रोटीन रहते हैं. ओके, दीज आर सेल सरफेस प्रोटीन एसेंशियल फॉर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम. ओके, these are very much essential for your adaptive immune system. Clear? Now, right. Now, these MHC protein molecules are encoded by MHC gene. Though these are protein molecules, definitely they have been coated by some kind of genes. The genes are your MHC gene. Clear? Now, the MHC genes are present in MHC locus. What does mean MHC locus? Locus means in the chromosome where the genes are present. Right. That is known as a locus. Okay. Locus means जागा, कैरेज है, कहाँ पे रहता है. जीन मीन्स वहाँ से जो आता है. लोकस मीन्स जगह, वो पर्टिकुलर प्लेस.
So chromosome and then the set, they are the polymorphic genes. Polymorphic genes means they are different type of genes. That means not all the MHC molecules are same. Now MHC locus is present in all zoid vertebrates. This is the important one. All zoid. Zoid मतलब जिसका जॉ है, ये जो इसे करते हैं ना, ये जॉ, माउथ नहीं है, ये माउथ तो आर्थवर्म का भी है, कॉकरोच का भी है। सर इसको गुजराती में छड़का दो। हाँ, जो भी है, जो जिसका पास है जॉ, जो है ना, वो जिसका पास है उसका पास MHC मॉलिक्यूल होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज नोन एज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब क्या है? नो हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टो मतलब हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू रिलेटेड थिंग्स। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू, नॉट ओनली टिश्यू, अदर्स आर ऑल्सो देयर फॉर योर। नाउ द टिश्यू, अभी अब कोई बच्चे को हम देखो, हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किसका रिजेक्ट होता है, किसका सब, किससे बेस रे, इस बेस में। सो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर, हाँ नहीं, ब्लड ग्रुप नहीं होता है। जैसे ब्लड ग्रुप सेम है, उस हिसाब से थोड़ी किडनी डोनेट हो जाएगा, इसका हिसाब से। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टिश्यू का कंपैटिबिलिटी। अगर मुझे किडनी लेना है तो मेरा सेल का सरफेस में जिस टाइप का MHC मॉलिक्यूल है, सेम MHC मॉलिक्यूल वो किडनी में होना चाहिए, तब भी आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। तो एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, okay, any organ transplantation, these molecules are play very vital role. That's why it is known as major histocompatibility complex, histocompatibility, tissue compatibility. ओके, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ब्लड ग्रुप के हिसाब से होता तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसको तो किडनी कोई भी A पॉजिटिव दे देता, नहीं चलता। क्यों मांगते? आपका फैमिली का ही कोई ढूंढो, क्योंकि फैमिली में कंपैटिबिलिटी अच्छा होता है। हाँ, पहला प्रायोरिटी A+ देखते हैं। जैसे शादी करने के लिए लड़के वाला लड़की ढूंढो, पर कोई भी लड़की नहीं चलेगा ना, सेम। होगा ही ना, क्योंकि आपका दूसरा किसको जरूरत पड़ेगा? फैमिली मतलब सेम फैमिली में श्योर होगा ही होगा, फैमिली में तो श्योर होगा, पर आपका दूसरा किसको सेट तो हो सकता है ना। मतलब आपका जो जैसे कि कुछ अलग से तो नहीं है ना। हाँ, पर आपका दूसरा किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। जिसको आपका साथ जिसका कंपार्ट उसको ही दिया जा सकता है, और फैमिली में तो श्योर होगा। क्लियर? सो why this is MHC, major histocompatibility? Because tissue compatibility upon transplantation. Transplantation करने के टाइम, that's why doctors are testing MHC typing. There is a word known as MHC typing. Okay. Now MHC determines the compatibility of a donor for organ transplant. जैसे मैंने बोला, donor का compatibility बताते हैं organ transplant, as well as some autoimmune disease. You will discuss in your unit 3rd, autoimmune disorders. Now MHC molecule mediate interaction with leukocyte. Generally what happen, these MHC molecules are interact with leukocytes. Leukocytes means or WBC. उसका interaction करके they are doing some kind of rejection. Now each MHC molecule on the cell surface, generally what happen, the principal role of MHC molecule is they will present antigen to T cell. Did you get me? MHC molecule का फंक्शन क्या है? इसका हिसाब से हम तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सोचते, पर इसका काम क्या है?
जैसे मैं यहीं पे बैठा हूँ, सेल इन्फेक्टेड है या नहीं हुआ? नहीं, जैसे मैं यहीं पे बैठा हूँ तो आप लोग शांत बैठे हो, मैं बैठा हूँ मतलब शांत बैठो, इसका मतलब मेरा काम आपको शांत बैठाना नहीं है। एमएससी मॉलिक्यूल को कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका मतलब कंपैटिबिलिटी इसका काम नहीं है, मेरा एग्जैक्ट काम आपको पढ़ाना। जैसे मैं यहीं पे बैठा हूँ तो आप शांत बैठे हो, इसका मतलब मेरा आपको शांत बैठाने का काम नहीं है, मेरा काम आपको पढ़ाना है। सेम एमएचसी मॉलिक्यूल जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल टेस्ट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करेंगे ही इसका एमएचसी मॉलिक्यूल क्या, देखो सेम डोनर चाहिए उनको, सेम कंपैटिबिलिटी डोनर। तो एमएचसी मॉलिक्यूल का काम नहीं है कंपैटिबिलिटी होना नहीं होना, उसका काम क्या है, उसका काम जनरली है एंटीजन को प्रेजेंट करना। अगर इन्फेक्शन हुआ, कुछ अंदर में इंटर किया, तो एंटीजन को प्रेजेंट करना। हाँ पढ़ेंगे हम एंटीजन, इसका मेन काम है, इट्स मेन फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल इज इट विल प्रेजेंट एंटीजन, नॉट टोटल एंटीजन, एपिटोप, एपिटोप। ओके, व्हेन एंटीजन एंटर टू बॉडी there is a several process, it will cut chopped the antigen, fragmented antigen, and which fragment, the epitope of the antigen will present by MHC molecule to the T cell। कौन सा सेल, याद रहा। फिर टी सेल में दो टाइप का होंगे, हेल्पर टी सेल साइड और बाद में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, किसको, टी सेल को। एपीसी बोले अलग अलग है, नहीं एपीसी नहीं, एपीसी को नहीं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसका फुल फॉर्म तो यही हुआ ना? फिर से बोलो, तो एपीसी बोलते थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। किसको, एमएचसी नहीं एमएचसी मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है। वो तो मतलब रिसेप्टर हुआ ना जो सेल के आउटर सर्फेस। हाँ, तो इसको एपीसी नहीं बोल सकते हैं ना, एमएचसी को। एपीसी का ऊपर में ये होंगे, नहीं टी सेल ही करेगा, क्योंकि एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्निशन का रिसेप्टर उसका पास ही है, राइट। जैसे मेरा पास मैंने लिया है टाटा स्काई, सिग्नल टाटा स्काई आएगा ना, okay, so each MHC molecule on the surface shall display epitope of the antigen। तो MHC molecule क्या करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टी सेल को। इट्स मेन फंक्शन इज इट विल प्रेजेंट फ्रैगमेंटेड एंटीजन, नॉट ओनली फ्रैगमेंटेड एंटीजन, द एपिटोप, you to get me, the epitope of the antigen to the T cell। Okay, it may be T helper cell, it may be cytotoxic, there are two type of T cell is present, one is a T helper cell, another is cytotoxic T cell, clear। Now in human the MHC region occurs in chromosome number 6, it is an important question। Okay, chromosome 6, MHC molecule का जीन कहाँ होते हैं कल्याणी, તમે કઈ છો बेटा, क्वेश्चन मेरा क्या था रुतबी, किसको पूछा, उसको बोलो सर कुछ पूछ रहे। कल्याणी आप भाई भी कुछ मेरा बात आपको सुनाई दे रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपको सुनाई दिया, बोलो कुछ रेस्पॉन्स करोगे तो मुझे पता चलेगा ना। लैपटॉप फेंक के मारूंगा। So it is present in chromosome number 6
कहीं रास्ते में rubric. आपका मार्क्स ना मैं कम दूंगा ना मैं ज़्यादा दूंगा, आप जो डिजर्व को भी मिलेगा ही, इरेस्पेक्टिव ऑफ मुझे मान रहे हो नहीं मान रहे हो, मुझे मान रहे हो नहीं मान रहे हो, दैट इज इन बिटवीन आवर पर्सनल रिलेशन, पर आप जो हो वो हो. एनीवे, सो MHC genes are generally in medical language. MHC they cannot take they cannot call this molecule as MHC. They will call it as HLA, human leukocyte antigen. Okay, in medical language, medical terminology, they are not calling no more this is MHC, they call this HLA. Okay, MHC is the molecule, HLA is the gene, human leukocyte antigen. Clear? जीन को बोलते हैं HLA, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, बनने के बाद सेल सरफेस पे अटैच होता है, उसको उस टाइम बोलते हैं MHC मॉलिक्यूल. क्लियर? HLA जीन, मॉलिक्यूल MHC. ओके, सॉरी, ओ हाँ, और जेनेटिक मार्कर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको. वो क्या होता है जनरली, MHC जीन बीच में है, टोटल DNA फ्रैगमेंट है. MHC जीन का दोनों तरफ एक MOG होता है, एक COL11A2 होता है, दो जीन अलग से होता है. जैसे कि ये लैपटॉप बीच में है, दोनों तरफ दो अलग जीन है. अगर मुझे लैपटॉप को एम्पलीफाई करना है ये जीन को, तो PCR पढ़ा है आपको, एक, हाँ राइट, एक प्राइमर इधर लूंगा, एक प्राइमर इधर लूंगा, तो इधर से जाएगा, ये जीन एम्पलीफाई होकर बाहर आएगा. तो हाँ, तो फ्लैंकिंग मतलब दोनों तरफ है बाउंड्री में. ओके, फ्लैंकिंग मतलब जीन अंदर में है, दोनों तरफ ये दो जीन है. तो अगर आपको MHC मॉलिक्यूल जीन चाहिए तो MOG एंड COL11A2 इसको आप प्राइमर लेके एम्पलीफाई कर सकते हो. क्लियर? HLA होगा वो इस दोनों के बीच में होगा ना, HLA जीन. हाँ, HLA ही है ना, MHC मॉलिक्यूल HLA जीन, मतलब वो जीन है वो इन दोनों के बीच में होगा, दोनों का बीच में ही है, दोनों का बीच में, इसलिए फ्लैंकिंग बोलते हैं उसको. ओके, सो MHC रीजन, हाउ मेनी जीन्स आर देयर? 224. राइट, हाउ मेनी जीन्स आर देयर? 224. नहीं, वो याद रखने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और एग्जाम में नहीं आएंगे, जहाँ पे आएंगे मैं आपको बोल दूंगा. ओके, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया था, कुछ रिसर्च आर्टिकल से लिया है, तो रखा है मैंने इसको, जिसको इंटरेस्ट होगा देखेगा. सो द MHC रीजन कंटेनिंग 224 जीन स्पेनिंग 3.6 मिलियन बेस पेज, 3.6 मिलियन बेस पेज तक इसका होता है DNA. ओके, इतना जीन उसमें रहते हैं. नाउ लुक एट हियर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 6. लुक एट द पिक्चर. In HLA-A, HLA-C, HLA-B, HLA-DR, HLA-DQ, DP, all these are the different form of your MHC gene. Clear? Now we will discuss about discovery of MHC gene. Okay, when it has been discovered, the first description of MHC were made by British immunologist Peter George. Okay, Peter Gorer in 1936 he has discovered this gene. First time they identified in mice. Okay, then later Clarence Little transplanted tumor across strains of mice and found rejection. फिर ये क्या कहे क्लेरेंस, माइस का ट्यूमर लिए, ट्यूमर लेकर अलग अलग माइस में ट्रांसप्लांट किए, देखो रिजेक्ट हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. देन आफ्टर जॉन डोसेट he demonstrated that the existence of gene in human. Okay,
क्लेरेंस लिटिल क्या किया एक्सपेरिमेंटली, वो माइस का ट्यूमर लिए, ट्यूमर लेकर अलग अलग माइस में ट्रांसप्लांट किए, देखो रिजेक्ट हो रहा है। फिर जॉन डसर क्या किया, देखिए दिस MHC जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन। नाउ दिस स्नेल, जी स्नेल, वो आइडेंटिफाई किए कि माइस में जो भी MHC मॉलिक्यूल है दे आर नियरली आइडेंटिकल और मे डिफरेंट, okay, but different the histocompatibility is also there. Now for that, then after that Bayreuth Bonasaraf, he demonstrated that all the MHC molecule are not same, they are polymorphic. Polymorphic means different, they are in different, not same. Okay, these are three scientists, Snell, Dosset and Bonasaraf. For the discovery of these three are awarded in Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1980. Okay, then they have written the article, name is genetically determined structure on the cell surface that regulate immunological reactions. So आपका जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ऑलरेडी डिफाइन हो सकता है आपका जीन से, क्योंकि MHC जीन आपका कैसा है क्या है, उसी हिसाब से आपका पूरा थ्रू आउट लाइफ डिटरमिन करेगा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। ऑल्दो दिस MHC जीन्स आर रिलेटेड टू एडप्टिव इम्यूनिटी, स्टिल कैसे टाइप का MHC जीन आपका पास है वो भी डिटरमिन करेंगे। क्लियर? सो I think I will stop here. Next 9:30 we will sharp meet 9:30. It is just introduction of the MHC. Okay, इसमें कोई कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट नहीं था जब तक हम पढ़ाया, बस अब इस एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव में आएंगे। ओके, सो 9:30 को जो क्लास लूँगा वो आपका इस एग्जाम में या कोई ना कोई एग्जाम में आएंगे, सो डोंट मिस दैट वन। टिल नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, पर शार्प 9:30 you can join, I will share you the link, okay, again you can join with that.